Good morning, all of you. Good morning, sir. So today, again, we are come up with the sheet metal forming. So today we will discuss the important process of sheet metal forming, that is punching and blanking. Many times we have discussed this. So I think you all know how we can identify the punching process and the blanking process. And why it is important? Because in many applications, especially in the sheet metal forming, we require the punching operation as well as the blanking operation. So if you have any doubt related to the punching and blanking, then I can explain. Any doubt related to the blanking and punching? सभी को आता है blanking and punching? Please let me know. Yes, sir. कृष्ण आपको आता है 47? Okay, again I am going to explain. Please listen. If this is a sheet, complete sheet, if I'm going to make a cut into this sheet, if this cut portion is a scrap, if this cut portion is a scrap, that process is known as the punching process. Okay, you can see if this cutting portion in the case of punching consider as a scrap, and this process is known as the punching process. And same thing here, if this cut portion is our useful part, if this is a useful part for further application, okay, useful part, then we can say this is a process of blanking, nothing more than that. You can see here, you can read the theory of this process. Blanking is an operation of cutting in which a flat shape from the sheet metal, the article punched out is called the blank. जो भी हम लोग ये पोर्शन कट करते हैं इसको हम ब्लैंक बोलते हैं अगर ये यूजफुल पार्ट है. Okay, and is required for the product for the operation. The whole or the metal left is discarded or as a waste. जो भी ये रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या होगा? ये स्क्रैप होगा. यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एरो बना के. ठीक है, अगर हम पंचिंग की बात करें, इट इज द कटिंग ऑपरेशन बाय विच द वेरियस शेप्ड होल्स आर मेड इन द शीट मेटल. Punching is similar to the blanking, except that in the punching, the hole is discarded, a desired out product. Hole is the desired product. The material punched out to form the hole being based. Okay, होल क्रिएट करना हमारे लिए डिजायर्ड रहता है. जो भी कट पोर्शन निकल के आ रहा है, दैट इज ए काइंड ऑफ ए स्क्रैप. ओके, इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now move to the next process, which is very important. Types of dies. We have majorly the two types of dies. One is the types of press operation. Second is method of operation. So we have the two, we can say, important operations. One is the cutting operation. Second is the forming operation. So here you can see this is there is one type of dies are known as the cutting dies. Second is forming die. So as the name refer, cutting. So you can understand by the help of cutting dies we can cut the workpiece or the sheet in the desired shape. And in the case of forming, we only change the shape. There is a no cutting operation in the case of forming. Okay, now come to the method of operation. So we have different types of dies: simple die, compound die, progressive die, combination die, and multiple dies. So in the simple die, what we do actually, we only
combine one process in one stroke of the punch. ओके, जो भी आपका पंच है, पंच एंड डाई समझ रहे हैं, ये पंच है और नीचे आपके डाई रहती है, इसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जिस तरह से भी आपको जिस तरह की शेप आपके प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो सिंपल डाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डाई इन विच वी परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन इन वन स्ट्रोक ऑफ द पंच, एक स्ट्रोक में एक ही ऑपरेशन होगा। और कंपाउंड डाई में क्या होता है, आपको मैंने कंपाउंड डाई का यस सर, 2 टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं सर। हाँ, इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, ब्लैंकिंग भी होता है और पंचिंग भी सर होती है। कटिंग भी पंचिंग सर। दोनों कटिंग ही हैं, बट वी हैव द 2 ऑपरेशन, वन इज ब्लैंकिंग, सेकंड इज पंचिंग। punching. Now, if we talking about the progressive die, in progressive die, what happens? In order to avoid the force requirement, or in order to reduce the force requirement, we perform the 2 operation in progressive manner. Is it clear? हम लोग जो 2 ऑपरेशंस हैं, ब्लैंकिंग और पंचिंग, उनको प्रोग्रेसिव मैनर में करते हैं कि पहला एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डाई। वो दोनों प्रोसेस रहे, लेकिन एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा ऐसे हो रहा है। मैं आप इसको अभी डायग्राम के साथ भी आपको समझाऊंगा। देखिए, जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डाई है, कॉम्बिनेशन डाई। पेपर आना। प्लीज म्यूट योर माइक अनुज। कॉम्बिनेशन डाई, in combination die, what we do actually, we combine the 2 operations. Please remember, we combine the 2 operations, one is cutting, second is forming. अगर आप यहां तक जितने भी ऑपरेशंस हैं, सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, प्रोग्रेसिव डाई, इनमें सारे में कटिंग ऑपरेशन है, कोई भी फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारी कॉम्बिनेशन डाई है, उसमें क्या हो रहा है कि दोनों ऑपरेशन कंबाइन हो रहे हैं, कटिंग भी और फॉर्मिंग भी। ठीक है, याद रहेगा सभी को। एंड इन द केस ऑफ मल्टीपल डाइज, we take more than 2 dies at one place or in a one stroke. Okay, so this is a one special case, multiple dies, in which we combine 2 and 3 types of dies at one place, and in single stroke we perform the operation. Now you can see the definition of cutting dies. Cutting dies, these dies are used for the cutting or shearing action. कुछ भी स्पेशल नहीं है। इसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन द कटिंग डाइज, द डाइज विच इज यूज्ड फॉर द कटिंग ऑपरेशंस आर नोन एज द कटिंग डाइज। और फॉर्मिंग डाई को क्या बोलेंगे? देखिए, आप कहेंगे कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डाइज एंड डाई कटिंग डाइज एंड फॉर्मिंग डाइज, क्योंकि आपको नहीं पता है पूरी जो रिसर्च है, और जो कंपनी, मैंने अभी हिंडवेयर से बात कर रहा था, हिंडवेयर में एक हमारे अंकित शर्मा आपके एल्मुनाई हैं, मतलब हमारे एल्मुनाई हैं, आपके सीनियर हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग एक महीने में 3 लाख डाई मंगाते हैं। और डाई मंगा मतलब उनकी जो कॉस्ट है, उनकी कम से कम मतलब कितने करोड़ में जाती होगी, आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि हर कंपनी, अगर मान लीजिए उसने शेप चेंज करी प्रोडक्ट की, कुछ डिजाइन चेंज की, immediately you need to change the die. Are you getting my point or not? So the preparation of die, manufacturing of die is a second thing. We will discuss how we can prepare the dies, or how we can manufacture the dies. Okay, सबसे जो टिपिकल टास्क होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो है हाउ टू प्रिपेयर द कॉम्प्लेक्स डाइज। बहुत सारी इंटीग्रेट शेप्स होती हैं डाइज की। इसके लिए हमारे पास में सीएनसी, बीएमसी और जो सीएनसी लेथ, मिलिंग लेथ, बहुत सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तब जाके। और अभी क्या हो रहा है, अभी 3D प्रिंटिंग भी आ गई है। 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम लोग डाई बना रहे हैं, जो कि बहुत इजी टास्क है। आने वाले सालों में, आने वाले 5 से 10 सालों बाद, and I'm sure all dies will be manufactured by the additive manufacturing. What is the reason? Because
that dies gives the flexibility in the design. Whatever design you have, you can prepare the dies very easily. By keeping in mind that you must have the capacity to melt the material. What is current research is going on in the field of additive manufacturing? How to increase the capacity of the heating elements so that we can easily melt the mild steel or some other materials and we can prepare the dies. So far, we are limited to work with the low melting point materials. So that there is a one issue. But I know within 2-3 years, the researcher or the scientist or the engineers will resolve this problem. Okay, this is a huge problem with the additive manufacturing, that we are limited to work with the low melting point materials. So once we resolve this issue, then I'm sure, 100% sure, all the complex part will be manufactured by the additive manufacturing, because I have seen in the lab, even in Bharat Forge, I have seen one line of this additive manufacturing where we have visited for some project. So they have made arrangement for the visit in the additive manufacturing line. So we have seen they are also working on to this commercialization of the, we can say, additive manufacturing for steels and some high melting point materials. So I was talking about the manufacturing of dies and importance of this dies. Okay, so even in interviews, the most of the questions are related to the dies, क्योंकि इंडस्ट्री भी क्या है, देखिए अभी मेरे पास में एक कंसल्टेंसी आई है हैंडवेयर से ही, वो मेरा फ्रेंड है तो वो मेरे को कंसल्टेंसी देता रहता है। आप लोग कंसल्टेंसी समझते होंगे, कंसल्टेंसी समझते हैं? दे आर the industries, those who are working in the field of this we can say manufacturing, they are developing the faucets. The Hindware develops the lots of faucets, like आप लोगों ने देखा होगा ना, जिस वॉशरूम में जो भी आप लोग टोटी है, बहुत सारे फॉसेट्स रहते हैं, उसके अलग अलग एक एक कंपोनेंट को उठा के ले लीजिए, एक फैक्ट्री एक कंपोनेंट पे चल रही है और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं फॉसेट्स में, ठीक है? तो उसमें अगर आप मान लीजिए उसके वेट को अगर 10 ग्राम भी रिड्यूस कर दे रहे हो, तो आपको उस कंसल्टेंसी के 5 लाख रुपए एडिशनल मिलेंगे। तो आप सोचिए किस तरह का, क्योंकि आपको डाई पे काम करना है, डाई पे काम करना है कि डाई की शेप को किस तरह से बनाया जाए, ताकि और फिर उसके बाद में जो कंपोनेंट बन के आएगा उसकी आपको सीएफडी एनालिसिस करनी है, ताकि वो उतने प्रेशर को, जो फ्लूइड का प्रेशर जिसमें फ्लो होगा, उसको वो बियर कर सके, ठीक है? सो how many dies comes under the category of cutting dies? You can see blanking dies, piercing dies, perforating dies, notching dies, trimming dies, saving dies, nibbling dies. So these are the process in the sheet metal. It is my humble request to all of you, we are very much familiar about the blanking and punching. You can note down, even you can understand the piercing. Perforating is what? To create the progressive holes in the sheet. Perforating समझते हैं? Perforating word? Perforation, जैसे पेन आते हैं आजकल, देखा होगा पूरे में होल 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 रहते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटेड वर्क। मान लीजिए एक आपको शीट है और उसमें मल्टीपल होल बनाने हैं आपको पूरे, तो उसको बोलते हैं परफोरेटिंग डाइज। आपको एक ही प्रोसेस में मल्टीपल होल बन जाएंगे, परफोरेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है? याद रहेगा सभी को। नोचिंग है, मान लीजिए कोई शार्प एजेस हैं उनको कट करना है, कुछ ट्रिमिंग रहता है प्रोसेस, शेविंग रहता है, निवलिंग रहता है, इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, हम लोग इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये सारे ऑपरेशंस के नाम याद कर लीजिए और इनके ऑपरेशन सारे आना चाहिए।
कि ब्लैंकिंग क्या होता है, पंचिंग क्या होता है, पियर्सिंग क्या होता है, परफोरेटिंग क्या होता है, निबलिंग क्या होता है, नोचिंग क्या होता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन परफोरेटिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग और पंचिंग ये तो बहुत इजी है। नाउ हम बात करते हैं फॉर्मिंग डाइज का। दीज डाइज चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द ब्लैंक विदाउट रिमूविंग एनी स्टॉक। एज वी नो, as the name refer, name suggest forming. So we process the sheet only to change the shape or the appearance of the sheet. Okay, not more than that. So yes, we have the bending dies, drawing dies, and the squeezing dies. These are the comes under the category of forming dies. Now you can see the other types of die. Just wait, and remove this here. एज दी, अब आपको डायग्राम बहुत जल्दी से देखना है। ये वर्क पीस है, एक स्ट्रोक में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दिस ऑपरेशन मे बी ए पंचिंग और ए ब्लैंकिंग। ओके, सो दिस पोर्शन इज नोन एज द कट पोर्शन। इफ इट इज ए स्क्रैप, then it is a punching. If it is a useful part or a blank, then we can say it is a blanking operation. So what is the difference between the simple and compound die? In one single stock, we only perform one operation. Either it will be a punching or a blanking. Okay. Now if we talking about the compound die, so in the case of compound die, what happens? The two operation performed simultaneously. You can see there are the two cutting operations are going on. Here there is a worksheet, there is a sheet, you can see, and here this punch descends down and perform this punching operation, and this one, I can use my pen, you can see, and here this, is it visible to you? Here there is a blanking operation is going on, and here there is a punching operation is going punching on. Yes, so here you can see the final, we can say the top view of this object, washer, we can say. So the compound die in which the two operations performed simultaneously. Now you can see the progressive die. In progressive die, what happens? Initially, here you can say the punch process is going on, punching operation is going on, and this sheet continuously feed forward, and then the blanking operation perform. You can see here, यहां से पर ऑपरेशन पहले में ये पंचिंग हुआ, ये आपको दिख रहा है स्क्रैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्क्रैप है, फिर ये इसको सर पहले पंचिंग कर हुई देता है। हाँ, पहले पंचिंग से, हाँ पहले पंचिंग हो रहा है। ठीक है, ये होता क्या है, कॉन्टिन्यूसली फीड होता रहता है। एक ऑपरेशन हुआ और जैसे ही ये ऊपर जाएगा, आपका जो पंच, ये जो पंचे हैं, दोनों पंच जो लगे हुए हैं, ये ऊपर जाएंगे, इतनी देर में ये जो सीट है वो इसके सामने आ जाएगी। जो पंच हुई, जो ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और फिर दूसरे बार जब दूसरा पंच आएगा तो ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, और ये पहला वाला ऑपरेशन, जो पहला वाला जो पंच है वो क्या परफॉर्म कर रहा होगा, ये पंचिंग ऑपरेशन, ये ब्लैंकिंग कर रहा है और ये पंचिंग ऑपरेशन। सो वी आर डूइंग द टू ऑपरेशन इन द प्रोग्रेसिव मैनर। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, प्लीज टेल मी। नहीं सर, आ गया। आ गया सर। हाँ, एक ऑपरेशन ये परफॉर्म हुआ, ये आगे फॉरवर्ड हो गया, इधर फॉरवर्ड हो गया, फिर जैसे ही दूसरी बार में जब ये this punch will descend down, then what will happen? This punch will perform the blanking, and this punch again perform a new, we can say, the punching operation. Okay, और हमें वॉशर मिल जाएगा, जो भी वॉशर, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। Now these are the combination die. In the combination die, what we do actually, we cut the specimen, or we can say the material, and also we perform the forming operation. So you can see this is a sheet. This is a sheet which is placed onto this die. This is a die. Okay, here this is a punch which is coming or descending down. Is it clear? Drawing punch, you can see. Now what happens? This machine, or this, we can say the punch, will perform
the operation of blanking. So this is a, we can say the blank. Okay, cut blank. ये जो आपका ये जो पंच है, ये जो पंच है, ये आपको विजुअल है, ये जो पंच है ये आपका ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कट हो गया, अब आपकी शीट कट हो गई। उसके बाद में जो ये व्हाइट वाला पंच है, ड्राइंग पंच जिसको हम बोल रहे हैं, वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? सर एक बार शुरू से बता दीजिए सर, नेट चला गया था सर। हेलो। यस यस, so here you can see this is a drawing punch. ये drawing punch है और ये blanking punch है। ये समझ में आ रहा है? देखो ये 1 और 2 लिखा हुआ है, और यहां भी देखते रहिए आप लोग। 1 क्या है? drawing punch। 2 क्या है? blanking die और blanking punch, सॉरी। और 3rd क्या है? आपका sheet metal है। और 4th क्या है? डाई है, जो नीचे रखी हुई है ये डाई है, जिसमें ये कैविटी ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपने क्या किया? शीट को यहां प्लेस कर दिया। अब देखिए इसमें जो 2 पंच हैं, पंच 1 और पंच 2, पहले कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? कौन सा पंच काम कर रहा है अपना? जो सेकंड वाला पंच है वो पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो कटिंग कर रहा है। तो कटिंग जैसे ही शीट कट हो जाएगी, मैं इसको रिमूव नहीं कर पा रहा हूं, जस्ट देखता हूं। जस्ट वेट। आपको विजिबल हो रहा होगा ये। यहां से देखें, ये जो पोर्शन है ये कट हो चुका है। अब जो पंच नंबर 1 है वो फॉर्मिंग के लिए आएगा, और वो आपकी जो कट पोर्शन है उसको फॉर्म कर देगा, मतलब उसकी शेप को चेंज कर देगा। तो कटिंग आपके इस वाले जो आपका 2 नंबर पंच है उसने किया, और फॉर्मिंग आपके इस 1 नंबर पंच ने किया। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया बाहर। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? सो इन दिस डाई we have combined the 2 operation. One is cutting, second is forming. First we have cut the blank, then simultaneously we have performed the drawing operation, or we can say the forming operation, to change the appearance of the sheet. So this is the final object. ये जो आपको black color में दिख रहा है ये आपका final product है। So this is a combination die, nothing more than that. We combine the 2 operation. One is we can say the cutting operation, and second is forming. और आपने इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन देखे भी होंगे कि मटेरियल कट भी हो जाए और उसके बाद फॉर्म होके निकले बाहर। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को हम उस डाइज को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन डाई। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ओके, नाउ यू कैन सी the cutting force required for blanking and piercing. This is very important. Even we have discussed in the lab, the cutting force required for blanking oblique piercing, or even for punching, is equals to the kpt, where k is the shear strength of the material in megapascal, and p is the perimeter of cut. For circular cut के लिए क्या होगा? मान लीजिए आपने जो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सर्कुलर कट किया। मान लीजिए आपका जो पंच है, पंच का जो फेस है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर कट करेगा। तो सर्कुलर के केस में हम कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई डी, या आपको जो याद हो 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर याद होगा आपको। अब अगर हम मान लीजिए उसने ऊपर पंच का फेस रेक्टेंगल है, तो वो रेक्टेंगुलर कट करेगा शीट को। तो इसके लिए हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बताइए? 2L + B, यही तो होता है। यस सर। और अगर मान लीजिए ट्राइंगुलर है तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ट्राइंगुलर है, हाफ सर, उसके सबकी इक्वल है। मान लीजिए साइड सभी की इक्वल है तो 3S। नई बात समझ में आ रही है? ठीक है, और T क्या है यहां पर? T क्या है? The thickness of the sheet. Now the question is how we can get this equation. This equation is obtained by the experimental trials.
and we have observed the force requirement in order to cut or punch the sheet. It depends upon the material, type of material, उसका shear strength कितना है. क्यों हम लोग shear strength को ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग कटिंग फोर्स निकाल रहे हैं, और कटिंग किस एक्शन से होती है? shearing एक्शन से होती है. तो हमें shear strength देखनी होगी उसकी. तो K क्या है? shear strength. और फिर दूसरा क्या होता है कि कितने पैरामीटर को कट कर रहा है आपका पंच. ठीक है. So we can say the force required for cutting is directly proportional to the shear strength, perimeter of cut, and thickness. Many times in competitive exams, I have seen lots of questions related to the cutting force. They have asked only one question or one parameter कि बताइए cutting force इसमें किस पे डिपेंड करता है. तो उसमें कहेगा बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ब्रेड्थ लिख देगा, कुछ भी लिख देगा. आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है. अगर हम उसकी पूरी शेप को देखें तो थिकनेस पे डिपेंड ज्यादा करता है वो, कि कितना थिकनेस उसकी मतलब है. जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कट करने के लिए. और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और हम लोगों को भी सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो ये याद हो गया सभी को केपीटी. अरे बताइए, बोल भी नहीं रहे हैं आप. ये तो मैं यस सर. हो गया सर. ओके. अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेटल कटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कटिंग होती है, क्या प्रिंसिपल है. देखिए, अगर सिंपल हम लोगों को ये तो पता है कि कटिंग पंचिंग से पंच जो नीचे मूव करता है और कटिंग हो जाती है, लेकिन कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म उसमें काम कर रही होती है. तो और इसके लिए देखो क्लियरेंस का क्या रोल है, क्योंकि इट इज ऑब्वियस दैट वी रिक्वायर्ड क्लियरेंस in between the die size and the punch size. Okay, so how we can calculate, you can see here, इसको आपको समझना है डायग्राम को कि कैसे. जैसे ये आपको क्या है, ये पंच है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए. ये पंच है और ये डाई है, ये डाई ओपनिंग है. So what happens initially, the sheet experiences the two type of we can say the forces. One is compressive force, second is tensile force. Okay, the upper portion of the sheet experiences the compressive force, whereas the lower portion, when it starts stretching, then some portion of the sheet, or we can say the shear portion of the sheet experiences the tensile force, or we can say the pulling or pushing force kind. Okay, now how it happens, suppose we have a sheet of thickness T. You can see here this punch is descending down. You can see this punch is coming down. Then what will happen, your clearance should be such that the crack initiate here must propagate and meet at the crack propagate from here. Is it clear what I'm trying to say? मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस इसको समझ लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे पंच नीचे डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेस, और जैसे ही सीट के कांटेक्ट में आता है तो उसके जो कॉर्नर पे एक क्रैक इनिशिएट होता है. फर्स्ट जब मान लीजिए जैसे ही उस पर प्रेशर ग्रेजुअली आप अप्लाई करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रुक गए एक बार. पूरा इनिशियली you applied the force of some amount and you are gradually applying of that load. Then what will happen, the first crack appears here, and the crack has the we can say the three stages. One is crack initiation, and second is crack, क्या बोलते हैं बोलिए, propagation, crack propagation, and the last is rupture or the failure. So here crack initiate तो हो गया. crack initiate क्यों होगा, कोई मुझे बता सकता है किसके कारण हो रहा है?
बिकॉज सर जो स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ के वो स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस के आगे ज्यादा है. Very good. The applied load or the applied stress is more than its yield stress. So the yielding is occurring. The first point of plastic deformation appears at this point A. Okay, this point is A. So what should be the condition? What should be the condition? That the crack, देखिए ऐसा नहीं है कि क्रैक केवल यहीं से ही इनिशिएट होगा, यहां से भी इनिशिएट होना चाहिए. भाई ये भी तो शार्प कॉर्नर है, यहां पर भी तो सीयरिंग एक्शन लग रहा होगा क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है. सो व्हाट हैपेंस, यू कैन सी जस्ट यहां से भी क्रैक प्रोपेगेट होता है. अरे देखो, यहां से भी क्रैक प्रोपेगेट होता है और यहां से भी क्रैक प्रोपेगेट होता है. अब हम बात करते हैं, अगर ये दोनों क्रैक जो प्रोपेगेट हो रहे हैं एक दूसरे से नहीं मिले तो प्रॉब्लम होगा. ये बात आपको हजम हो रही है? अगर मान लीजिए एक जो क्रैक है वो इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो क्या प्रॉपर कटिंग होगी? नो सर. नहीं होगी. तो बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए इंजीनियर, वी मस्ट नो what should be the proper clearance in between the punch and die so that the crack initiated and the propagating cracks must meet at one point in both the side. Otherwise the sheet will turn off, or we can say turn off. Are you getting my point or not? Here you can see Yes sir. the theory आप पढ़ सकते हैं. The cutting of the sheet metal in press work is because of the shearing process. In this process, punch is of the same shape as of the die opening. Please keep in your mind. ये हमेशा आपको याद रखना है. The shape of the punch is always same as the die opening. Okay. Now, what happens? It is smaller in each side by an amount called clearance. We always keep our punch in smaller size by giving some clearance. अगर मान लीजिए सेम साइज होगा, आप लोगों ने शायद फिटिंग पढ़ ली होगी मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में. Yes. पढ़ लिया है? हाँ, तो ये क्लियरेंस फिट है. हम लोग क्लियरेंस देते हैं जिससे कि वो जो पंच है इजीली डाई के अंदर इंसर्ट हो जाए और कटिंग ऑपरेशन प्रॉपर हो जाए. अगर मान लीजिए आप कुछ भी क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, then what will happen? There will be a transition. Yes, I know this object can forcefully fitted, but there will not be a proper cutting. So we provide a clearance. Now the question is how to calculate the clearance. कितना देना है, कितना mm? आप ऐसा नहीं क्लियरेंस देते हैं, ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है क्लियरेंस देते हैं, लेकिन कितना, कैसे हम लोगों को पता चलेगा ये क्लियरेंस जो हम दे रहे हैं? एक मान लीजिए आप कोई अपना खुद का इंडस्ट्री खोल रहे हैं और आप उसमें ब्लैंकिंग और पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट साइज ऑफ द पंच एंड डाई? ओके, सो फॉर दैट देयर इज ए एम्पिरिकल रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्लियरेंस. ओके, सो आई विल गिव यू दैट क्लियरेंस, दैट इज 0.032 under of tau s into t. Okay, now you can see as the punch touches the material and travels downward, it pushes the material into the die opening. The material is subjected to both tensile and compressive stresses. You can see here the top surface experience the compressive stress, and the bottom one which stretches, so it is experience the tensile. The highest stress will be at the edge of the punch, and die material will start cracking there. The various steps in the rupture or the fracture. If the clearance between punch and die is correct, please remember this line. If the clearance between, I have already discussed that if there is a proper clearance in between the punch and die, then there will be a proper, the crack starting, you can see the crack starting from punch and die edges will meet and the rupture is complete. Is it clear? Yes, Otherwise, what will happen?
आपको मैं दूसरी शेप दिखा देता हूँ सर क्या लास्ट हो लाइन एक जाए। बार समझा देंगे सर? दोबारा एक और। हाँ सर, नहीं आई सर, अभी लास्ट वाली लाइन नहीं आई सर। नेट स्लो है। ओके, लास्ट वाला लाइन देखो, मैंने कहा बेटा किसी भी शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन में हमें क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। इन दिस प्रोसेस पंच इज ऑफ द सेम शेप एज डाई ओपनिंग एक्सेप्ट दैट इट इज स्मॉलर इन ईच साइड बाय अमाउंट कॉल्ड क्लियरेंस। ठीक है, अब जैसे ही पंच इसको टच करता है तो ये ध्यान रखिएगा उसमें दो तरह के, जो वर्क पीस पे दो तरह की स्ट्रेसेस काम कर रही है। हाँ सर, टेंसाइल कंप्रेशन। ठीक है, हाईएस्ट स्ट्रेस विल बी एट द एज ऑफ द पंच, यहां पर जहां पर ये एज है इसके पंच की, यहां पर, और डाई की जो एज है यहां पर हाईएस्ट स्ट्रेस काम करती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज द एरिया एट दिस पॉइंट इज वेरी लो, सो द स्ट्रेस विल बी वेरी हाई। इज इट क्लियर? अगर एरिया कम होगा, क्योंकि वो पिन है ना, वो एक तरह से शार्प एज है ना, तो वहां पर एरिया कम है तो ज्यादा स्ट्रेस काम कर रही होंगी, ज्यादा स्ट्रेस काम करेंगी तो क्या होगा, वहां पे फेलियर, क्रैक इनिशिएट होगा, द वेरियस स्टेप्स इन द रप्चर। ओके, सो यहां पे देख सकते हैं पंच एंड डाई एंड मटेरियल विल स्टार्ट क्रैकिंग देयर। इफ द क्लियरेंस बिटवीन पंच एंड डाई इज करेक्ट, द क्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम पंच एंड डाई एजेस विल मीट एंड रप्चर इज कंप्लीट। अगर ये क्लियरेंस प्रॉपर है तभी क्रैक, जहां यहां से जो बन रहा है क्रैक, वो मीट करेगा एक दूसरे से और तभी वो प्रॉपर शियर फ्रैक्चर होगा, अदरवाइज नहीं। नाउ यू कैन सी, अगर ज्यादा होता है, अगर इम्प्रॉपर क्लियरेंस है तो क्या होता है, देखिए ये क्या है, इसमें अगर आप देखें टू मच क्लियरेंस, अगर आप मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा क्लियरेंस दे दिया तो क्या होगा, क्रैक यहां से देखो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जा रहा है, तो प्रॉपर आपका कटिंग होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए too little clearance is there, then what will happen, the crack initiated will meet to this die, not to this crack initiated at this point। यहां से देखेंगे तो देखो किस तरह से मीटिंग होगी इन दोनों की, मैं ये यूज कर ले रहा हूं। देखिए यहां से the crack will initiate in this way and this crack will meet in this way, then there will be no proper cutting between the punch and die। okay, clearance is too large, too small, the cracks do not meet and drag as results die to material being dragged out and turned through the die। मतलब turned out हो जाएगी, पूरी ब्रेक हो जाएगी और ड्रैग करने लगेगी आपकी शीट पे और जो भी टूल होंगे, लेकिन वो प्रॉपर कटिंग नहीं होगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉपर क्लियरेंस। सो द formula for calculating for the proper clearance is, you can note down this many times in interviews, ask about the clearance, so you have to remember this formula. This is a famous formula for calculating the clearance, that is 0.0032 t and under root of tau s। अगर आपको डाइज के बीच में क्लियरेंस कैलकुलेट करना है तो you can use this formula। this is empirical relation which can be calculated based on the thickness of the sheet, कितनी आपकी thickness है और क्या उसका shear strength है। tau s is what, जहां पर आप k यूज कर रहे थे वो यहां पे आप tau s यूज कर रहे हैं, सिंपल। tau s is the shear strength। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर एक चीज जानी थी सर। बोलिए बोलिए। सर जब हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं किसी मटेरियल पे और डाई की ओपनिंग की तरफ, तो सर हम देखते हैं सर एक तरीके का मिनिस्कस का जैसा फॉर्म होता है। ओके, थोड़ा जैसे वाटर कैपिलरी, मरकरी कैपिलरी वाला जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मिनिस्कस सा फॉर्म होता है प्रेशर। यस यस, वैसे ही तो सर वो अगर हम प्रेशर करेंगे तो धीरे धीरे उसका एरिया भी कम होता रहेगा ड्यू टू दैट। हाँ बिल्कुल है, एरिया कम होगा, एरिया कम होता जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। उसका भी सर एक क्लियरेंस देना पड़ेगा ना सर हमें डाई ओपनिंग में? नहीं सर जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम देखें, अगर एक बार सर प्रीवियस स्लाइड जो क्लियरेंस वाली है। नहीं, ये तो साइज कैलकुलेशन के लिए मैं बताऊंगा उसको, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, वो साइज क्लियरेंस कैसे निकाला जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया सभी को? तो सर ये वाला सिर्फ क्रैक के लिए है? नहीं, क्लियरेंस के लिए। हाँ तो सर ये क्लियरेंस आपको देना है
डाइज में क्लियरेंस देना है या पंच में क्लियरेंस देना है, उसके लिए है ये सी की वैल्यू। मान लीजिए वो कैसे हम देते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको कि अगर कैसे साइज कैलकुलेशन होता है, उसको डाई सेट साइज बोलते हैं। पहले ये फॉर्मूला समझिए, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे हमें पंच में क्लियरेंस देना है या डाई में क्लियरेंस देना है, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा 0.0032 t अंडर ऑफ टाउ s। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, पिछला वाला जो स्लाइड है आपका, इसको बोलते हैं डाई सेट साइज। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको डाई सेट साइज बोलते हैं, डाई सेट साइज। याद रहेगा सभी को कि डाई सेट्स, आपको पूछा जाएगा कि डाई सेट साइज बताइए, तो डाई सेट साइज का मतलब होता है डाई सेट, ये दिख रहा है ना डाई सेट का मतलब हो गया कि पंच का अलग साइज बताओ और डाई का अलग साइज बताओ। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो बोलते भी तो नहीं हो तुम लोग, मैं ही चिल्लाता है। यस सर, यस सर। हाँ, डाई सेट साइज में आप अब देखिए कैसे निकाला जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता है कि ये एक लेक्चर में तो क्या, मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि मुझे अगले लेक्चर में भी ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, और ये 10% लोगों को समझ में आता है डाई सेट साइज। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आपने कट कर लिया कोई पोर्शन आपको, या मान लीजिए आपको पता है आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए वॉशर ही बनाना है, तो वॉशर की सारी डायमेंशन तो आपको क्लियर होंगी। यस सर। पंच अंदर का होल क्लियर होगा और आउटर का कितना डायमीटर बनाना है वो भी क्लियर होगा। या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद में हम जाते हैं डाई डिजाइन पे कि भैया अब डाई का साइज क्या लूं, या मान लीजिए पंच का साइज क्या लूं, तो उसको कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके लिए देखिए मैं बोल रहा हूं जो सेंटेंस, अब सुनिएगा सभी लोग, मुझे पता है कम ही बच्चे रह गए हैं, 34 हैं, लेकिन समझना है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। अगर आपको पंच का साइज निकालना है, इसका पंच का साइज, पंच का सर, हाँ पंच का जो साइज होता है जो ऊपर मूवमेंट करता है, पंच का साइज होल के साइज में 2c जोड़ने पे निकलता है। ओके मेरी सर, बात दोनों समझ तरफ। में आई? हाँ दोनों तरफ सी देना पड़ेगा ना, सी इधर सी इधर। भाई मान लीजिए वो तो सर्कुलर है मतलब सिलेंड्रिकल है, लेकिन आप क्लियरेंस दे रहे हैं तो वो इधर का भी तो सी आएगा। अगर आप उसके, ये तो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है आपको, ये जो आपको फिगर दिख रहा है आपको, ये यहां से देखेंगे, अरे ये देखो, ये आपका जो इसमें अगर आप देखें ये साइज है, और यहां पर हम सी इधर और सी इधर, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये एक्चुअली सिलेंड्रिकल है सारे, ठीक है। देखिए अब यहां पर देखिए, when a hole has to be held to a size, इसको एक्चुअली साइज बोला जाता है। हम लोग साइज से निकालते हैं डायमेंशन सारी। The hole in the sheet metal is to be accurate, especially in punching operation, and slag is to be discarded. The punch is to be made, the size of hole and die opening is obtained by adding clearance to the punch size. ठीक है। In the blanking operation, where the slug or the blank is desired part, is it clear? जो कट पोर्शन है वो हमारा डिजायर्ड पार्ट है, and has to held to size the then die opening size equals to the blank size, and the punch size is obtained by the subtracting the clearance from the die opening size. मैं इसको आपको, ये समझ में आया कुछ थ्योरी आपको? यस सर। ओके नंदी, यू आर द इंटेलिजेंट वन।
ठीक है। मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग प्लीज मेरे साथ में रहिए। थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं। ये मान लीजिए आपकी डाई है, ठीक है। आपने मान लीजिए हम पंचिंग की बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं, पंचिंग ऑपरेशन की। तो पंचिंग ऑपरेशन में जो होल कट के आता है या होल जो आपको बनाना है, तो हम लोग पंच का साइज निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं इसकी एनालिसिस के बाद में ब्लैंकिंग की एनालिसिस बताऊंगा। आपको लिखना होता है पंच डाया। पंच डायामीटर कितना होगा बताइए? होल डाया -2C। प्लस होगा सर 2C। 2C तो पूरा साइज निकल के आ रहा है ना, ये देखिए। ये तो पूरा साइज निकल के आ रहा है ना। आप केवल पंच का साइज बताइए ना, डायमीटर ऑफ पंच कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। जितना सर पंच का उसका होल का। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड कहाँ है? देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पंचिंग में ये हमारा जो कट पोर्शन है, कट पोर्शन है या जो भी होल क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं मान लीजिए साइज, या मान लीजिए साइज, इसको हम बोलेंगे पंच का डायमीटर कितना होगा, साइज के बराबर होगा। और दूसरा क्या होगा, डाई डायमीटर। डाई डायमीटर कितना होगा, साइज में आपको क्लियरेंस जोड़, +2C करना है। बस ये निकल गया डाई सेट साइज। पंचिंग के केस में बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। तो No, इसका साइज होता है, और अगर आपको डाई का साइज निकालना है तो उसमें सी इधर जोड़ दो और सी इधर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा साइज +2C। तो डाई डायमीटर मैंने बताया, डाई डायमीटर ये है और पंच डायमीटर ये है। पंच डायमीटर किसके बराबर होगा, साइज के बराबर। किस केस में, पंचिंग के केस में। साइज क्या होता है, जो होल कट किया है आपने, क्योंकि पंचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, होल क्रिएशन, होल क्रिएशन। ये बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं, यस सर। इसको बोलते हैं, एक मिनट, हाँ अविनाश सर, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं क्लास में वो भी आ रहा हूँ, 2 मिनट में ऑफिस में ही आ रहा हूँ। अब ब्लैंकिंग के केस में कैसे करेंगे? अरे यार आप लोग कहेंगे कि यार 4 ही मिनट रह गई हैं। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, एक पेटेंट तो मेरा वो है, MPDV था, मल्टी पैडल ड्राइविंग व्हीकल। हाँ, और एक ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग मशीन वाला था। हाँ वो न्यूजन IDC का है। और एक था हमारा जो फिंगरप्रिंट बेसिस पे जो था, नहीं नहीं वो न्यूजन IDC का नहीं है वो। हाँ ये भी पर्सनल है। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, तो अभी गया नहीं है क्या ये सारे पेंडेंट? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। ब्लैंकिंग का आप समझ गए, ब्लैंकिंग का कैसे करेंगे अभी? साइज -2C हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो ब्लैंकिंग के केस में क्या होता है, आपको पता होगा। मान लीजिए ब्लैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ये पंचिंग वाला समझ में आ गया होगा। तो अब ये मान लीजिए ये ऑपरेशन आपका ब्लैंकिंग है। आपका लेक्चर किसका है अभी? सर कोई लेक्चर नहीं है अभी तो। नहीं सर, ट्यूटेशन हमारा। सॉरी यार आज के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। नहीं सर, ब्लैंकिंग क्लियर में क्या कर दो। होगा? कर लो सर, 5 मिनट हैं सर, अभी कर लिए सर। ब्लैंकिंग के केस में क्या होगा बेटा बताओ? ब्लैंकिंग में देखो, जो
कट पोर्शन आता है, कट पोर्शन आता है, तो आपका ये जो है ब्लैंकिंग में जो कट पोर्शन ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक बोलते हैं ना इसको, जो कट पोर्शन होता है वो ब्लैंक होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे पंच डाया, वैसा ही फिर डाई डाया। भाई ये तो हमने पंचिंग के केस में निकाला था, अब हमें ब्लैंकिंग के केस में। अब आप मुझे बताइए कि जो ये ब्लैंक का साइज है वो किसके बराबर होगा? सर डाई के। बिल्कुल सही। डाई तो हम कहेंगे साइज तो ये हो गया जो ब्लैंकिंग के केस में, और पंच, पंच का कैसे निकाला जाएगा? साइज में अगर मैं 2c बाहर कर दूं, -2c कर दूं, तो ये फॉर्मूला है इनके, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको साइज दे रखा होगा, मान लीजिए वो कहेंगे कि एक वॉशर है जिसका मान लीजिए डायमीटर ये 5 mm है और इसका डायमीटर 10 mm है, तो बताइए डाई सेट साइड बताइए दोनों के लिए, पंचिंग के लिए और ब्लैंकिंग के लिए। तो कैसे बताओगे? जल्दी से कर लेते हैं इसको, 3 मिनट हैं आज, मतलब जब गाली दे ही रहे हो तो और दे लो। बताइए जल्दी से इसको कैसे करेंगे? अरे पंचिंग के वो बताओ। 10 - 2c हो जाएगा, ये 5 + 2c हो जाएगा। अच्छा सी, हाँ बिल्कुल ठीक है, सी अभी मान लो, सी की वैल्यू हमने अभी निकाली नहीं है। तो पंच के लिए बताओ, पंच के लिए जो पंच का डायमीटर कितना होगा? पंच का डाया कितना होगा? वो तो सर 5 होगा। सर साइज प्लस वेरी गुड। 2c। नहीं नहीं, पंच का डायमीटर तो 5 ही होगा बेटा, क्योंकि पंच तो अच्छा। ये हुआ है ना। हाँ पंच का, हाँ पंच तो 5 ही और होगा सर। अब बताओ डाई डायमीटर कितना होगा? सर 5 + 2c हो जाएगा। 5 + 2c हो 2c। जाएगा। वेरी गुड, 5 + 2c। अब चलो ब्लैंकिंग का बताओ, सर ब्लैंकिंग का क्या हो तो जाएगा? ब्लैंकिंग का डाई हो गया डाई का 5 और डायमीटर पंच हो गया साइज 10 रहेगा, -2c। और पंच डाया, पंच का पंच डाया बताओ पहले तो। पंच का डायमीटर हो जाएगा 10 - 2। साइज 2c। -2c। बिल्कुल सही। और डाई डाया कितना हो जाएगा? 10। 10। 10 सर। दैट्स ऑल। इतना इजी इजी न्यूमेरिकल है। बस प्रॉब्लम आती है कि सी कैसे निकाला जाए। कभी कभी सी दे रखा होता है कि भाई थिकनेस का 30% है, तो आप समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर फॉर्मूले से निकलवा रहा है तो हम निकाल देंगे, हमारे को वो भी याद है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको और भी देखेंगे कैसे इसके बेस पे न्यूमेरिकल है। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सर। थैंक यू।